हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बताऊंगा, इसके बेसिक्स नॉलेज और कुछ फंडामेंटल फार्मूले आपको सिखाऊंगा। तो अच्छी तरह सीखिए। उसके बाद इसको सीखने के बाद आप सभी क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके। तो सबसे प्लेन सरफेस डिवाइडेड इन फोर पार्ट्स। प्लेन सरफेस डिवाइडेड in four parts. This parts is called quadrant. This is the first quadrant, second quadrant, third and fourth quadrant. Horizontal axis. This is called x-axis. Y-axis. Pair of coordinate axis. Pair of coordinate ज्योमेट्री डाल देता हूं आपको। ज्योमेट्री coordinate geometry. Pair of coordinate axis. Axis कौन कौन से हो गए? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। Horizontal line x axis again horizontal line और भाषा चेंज कर सकता है, लैंग्वेज चेंज। पैरेलल टू अर्थ, पैरेलल टू अर्थ is called x axis. Y axis vertical line, vertical line और perpendicular to earth। जब हम खड़े हैं तो परपेंडिकुलर जा रही है, इज कॉल्ड वाई एक्सिस। थर्ड ओरिजिन, origin, the x axis and y axis, x axis या ऐसे लेंगे द इंटरसेक्शन पॉइंट, द intersection perpendicular point of x axis and y axis is called origin. The coordinate of origin, just this is x axis, right hand side is positive, अप में बढ़ रहे हैं हम, आदमी तरक्की करता है तो बोल रहे हैं कि प्लस में जा रहा है। उल्टे रास्ते पे चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज नेगेटिव, आदमी गड्ढे में गिर रहा है नीचे की तरफ,
तो माइनस में जा रहा है, ये आपके साइन हो गए। कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, या इसको ऐसे लिखते हैं 0 0। वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x और कोऑर्डिनेट ऑफ x और कोऑर्डिनेट ऑफ x is called abscissa. It is called abscissa. Value of y or coordinate of y is called ordinate. Note करें बेटा, value of x is called abscissa and value of y is called ordinate. Now in first quadrant, again this is x-axis and this is the y-axis. Origin O, coordinate is 0 0. First quadrant, this is the second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. First we run on x-axis at positive, like right hand side is solid, left hand is negative. Upper side is positive and down side is negative. In first quadrant, we run on the x-axis. We run on the x-axis means right hand side is positive, x is positive, and y we run upside on the y-axis. So y is also positive. In second quadrant, we run first on x-axis. We run on x-axis. So x is minus, and we run on y-axis upside. Y is equal to positive. In third quadrant, we first run on the x-axis. X-axis is minus, and y-axis downside. This is also minus. It means in third quadrant, their value of x and y minus minus. In fourth quadrant, we first run on x-axis, x is positive and y downside, y is negative. तो आप ये सब देख सकते हैं कि कौन से कोऑर्डिनेट में कौन सा आएगा। इसके बाद में इफ पॉइंट ऑन द x-axis लिखना है आपको, इफ पॉइंट ऑन द x-axis then y is equal to 0. y is equal to 0. देखो किधर भी चले हम, राइट हैंड साइड में चले x पे, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए x एंड 0. नेगेटिव में आ गए, इधर आ गए p डैश बोल देते हैं, इसको p कर देते हैं, तो क्या बन गया माइनस एक्स और 0. y पे चले ही नहीं हम, तो y इज इक्वल टू 0, और इसको ऐसे भी कह सकते हैं हम, कोऑर्डिनेट ऑफ p, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p
प्लस माइनस एक्स, एक्स प्लस माइनस कर सकता है, और वाई जीरो। एंड नाउ फिफ्थ पॉइंट, when point on the y axis, ये नोट करने हैं, आपको याद रखना है, क्वेश्चनों में काम आएंगे। when point on the y axis, then x is equal to 0 और कोऑर्डिनेट पॉइंट इज 0 एंड प्लस माइनस y। देखो, अगर कोई क्यू पॉइंट है यहाँ, तो अब किस पे चल रहे हैं, एक्स पे तो जा ही नहीं रहे, तो एक्स इज इक्वल टू 0 और y। ऐसे नीचे आए यहाँ क्यू, तो किस पे, एक्स पे तो गई नहीं इधर, एक्स इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू माइनस। ओके बेटा, तो हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट 0 एंड प्लस माइनस y प्लस माइनस का हो सकता है। एंड नाउ सिक्स पॉइंट, perpendicular distance of a given point from x axis or y axis। जैसे आपका ये the coordinate x, x dash, y, y dash, 0 point, any point p, his coordinate is 1 2 3, x is equal to 3 और ये 1 2 3 4 and 5, 1 2 3 4 5। अगर इधर भी है कोई 1 2 3, तो ये आपका आ गया -3 एंड 5, और इधर आया आपका 3 एंड 5। ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, perpendicular distance of a given point, of a given point of coordinate मान लेते हैं इसी को हम +-3 एंड 5। फर्स्ट, perpendicular distance of a given point from x axis, it is the value of, it is value of y। x एक्सिस से डिस्टेंस वैल्यू कितनी ऊपर, कितना जा रहे हैं हम y पर, 5 यूनिट। ओके, इधर भी y x से y के ऊपर जा रहा है। सेकंड, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, it is value of x। ये डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, तो 3 हम y से इधर जाएं या लेफ्ट राइट में जाएं या लेफ्ट में जाएं, 3 चल रहे हैं, तो डिस्टेंस क्या लिखेंगे, 3 यूनिट, ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, नोट करें, ये 6 पॉइंट, 6 पॉइंट हो गए आपके, 2 पॉइंट और लिखाता हूं।
ऑन एक्स एक्सिस बताया था अभी आपने, देन y इज इक्वल टू 0. इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज इक्वेशन ऑफ एक्स एक्स, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगी, y इज इक्वल टू 0. सेम व्हेन पॉइंट on the y-axis then x is equal to 0, or it is called equation of x-axis y-axis x is equal to 0. ये याद रखना है, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हो तो y 0, पॉइंट ऑन y एक्सिस पे हो तो x 0 इक्वेशन ऑफ भी बोलते हैं इसको. अब आते हैं हम मेन जो डिस्टेंस फार्मूला. डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं, और इसको ये भी बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. Between 2 points, as there are 2 points A and B. Coordinate of A is equal to x1, y1. Coordinate of B x2 and y2. हमें डायरेक्ट आइडेंटिटी याद रखनी है, हाउ टू ड्राइव ये नहीं आएगा आपके 10th क्लास में. तो डिस्टेंस ए बी अंडर रूट डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट. कैसे याद रखना है, डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट होल स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर ए बी इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट मीन्स जो दूर का है वो x2 है, और ये x1, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y दूर है तो बड़ा होगा और ये छोटा होगा y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. अगर इसका इधर स्क्वायर कर दें हम तो ये इधर हट जाता है, रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस ले हम एक्स की कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे 0 एंड 0, दूसरा कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है p, इसको x2 y2 लें और ये x1 एंड y1. तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ ए पॉइंट, ऑफ ए पॉइंट. तो अब ये देखिए हम यहाँ x2 की जगह x1 और y1 की जगह क्या रखेंगे, 0 0 होगा तो क्या हो जाएगा, या 2 को मान लो, तो इसको डायरेक्ट याद रखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कोऑर्डिनेट है यहाँ एक्स वाई, या x1 होल स्क्वायर प्लस y1 हो जाएगा बेटा.
दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। नोट करें आप सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन मीन्स डिवाइड coordinate of a x1 and y1. A point P divide the line AB into ratio m1 ratio m2। ओके, P पॉइंट है ये आपका, जो किस में डिवाइड कर रहा है, m1 और m2 रेशो में कर रहा है। स्ट्रेट बोर्ड में m n भी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकते हैं हम। द कोऑर्डिनेट ऑफ सेक्शन पॉइंट, दिस इज कॉल्ड सेक्शन पॉइंट। कोऑर्डिनेट ऑफ सेक्शन पॉइंट इज x एंड y लिखने हैं। बाय सेक्शन फार्मूला, सेक्शन पॉइंट P P coordinate of section point P, रेशो दे रखा है m1 m2, तो x इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ x m1 x2, या इसी प्रकार करना है m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे कोऑर्डिनेट ऑफ y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। और ये इंटरनली डिवाइड करता है, क्या करता है, इंटरनली डिवाइड, इसको बोलते हैं इंटरनली डिवाइड, अंदर की तरफ करेगा बेटा। और स्टेट बोर्ड में m1 और m2 की जगह m और n रिप्लेस कर देंगे, जो स्टेट बोर्ड में पढ़ रहे हैं जिनके यहाँ m और n लिखा रहता है। सीबीएसई एनसीईआरटी में m1 x2। ओके, नाउ इफ m1 इज इक्वल टू m2, यानी बोथ आर इक्वल, देन इट इज कॉल्ड मिड पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, मिड पॉइंट। इफ रेशो सेम है, इट इज कॉल्ड मिड पॉइंट। तो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट अब आप देखिए यहाँ क्या है, बराबर होंगे तो 1:1 होगा इनका। क्या रेशो होगा, 1:m1 m2 1:1, इक्वल मिड पॉइंट है। तो यहाँ m की जगह 1 आ जाएगा, m2 की जगह 1 आ जाएगा, तो 1 1 से इंटू करेंगे किसी नंबर को तो वही नंबर आता है। तो ये बन गया कोऑर्डिनेट ऑफ x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये नोट करें, सेक्शन फार्मूला और ये मिड पॉइंट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल डिवाइड। और एक्सटर्नल डिवाइड का माइनस हो जाता है, एक्सटर्नल डिवाइड डिवीजन फार्मूला। x कोऑर्डिनेट वही m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, सेम बार m1 y2 माइनस
m2y1 अपॉन m1 माइनस m2। और ये किस साइड पे होगा, ये डिपेंड करेगा m1 इज ग्रेटर देन m2, m1 बड़ा है m2 से, तो ये m2 की तरफ होगा, साइड ऑफ m2। सेक्शन पॉइंट जो आएगा वो यहाँ आएगा, और m1 इज लेस देन m2, m2 बड़ा है, तो सेक्शन पॉइंट साइड ऑफ m1, m1 की तरफ होगा सेक्शन पॉइंट। ओके, ये नोट करें। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज टू प्रूव, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज टू प्रूव राइट एंगल ट्राइंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स। ओके, इन राइट ट्राइंगल right angle triangle, if distance of right angle triangle AB and C, this is the hypotenuse, base or perpendicular, तो by Pythagoras theorem, by Pythagoras theorem, this AB, distance of AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ AC का स्क्वायर प्लस डिस्टेंस ऑफ BC का स्क्वायर आ जाए तो इट इज परपेंडिकुलर, प्रूव कर सकते हैं। इफ इन स्केलन ट्राइंगल, स्केलन ट्राइंगल थ्री साइड आर नॉट इक्वल, थ्री साइड्स आर नॉट इक्वल, तो तीनों डिस्टेंस निकालेंगे। ए बी, डिस्टेंस ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी ए। अगर ये डिस्टेंस तीनों बराबर नहीं आ रही है तो इट इज स्केलन ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, if distance of two sides, distance of two equal sides are equal, the distance AB equal AC, then it is vertex of isosceles triangle। ओके, ट्राइंगल के बाद आपको एक आता है बेटा, नोट करें इसको, डिस्टेंस फॉर्मूला यूजिंग टू प्रूव स्क्वायर और रोम्बस, स्क्वायर और रोम्बस सेम रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम। You know the property of square, all sides are equal, A, B, C, D. Same in property rhombus, four sides are equal, दोनों में ये कॉमन है, कॉमन प्रॉपर्टी। ए बी इक्वल बी सी, बी सी इक्वल सी ए, सी ए इक्वल
AB इक्वल BC, BC इक्वल CD, CD इक्वल DA। ये चारों दोनों में ही प्रॉपर्टी सेम है, बट डिफरेंस फाइनल टेस्ट। जैसे हमें बुखार आ जाता है और चेक कराने या डॉक्टर के पास बैठ जाए, तो डॉक्टर बोलेगा बुखार है। अब कौन सा बुखार है, तो ये तो लैब में ही जाके टेस्ट होगा। ऐसे ही हमने यहाँ डिस्टेंस निकाली, चारों डिस्टेंस है बराबर आ गई, तो इट मे बी स्क्वायर और रोम्बस, दोनों ही हो सकता है। फाइनल टेस्ट, डायगोनल टेस्ट, diagonals are equal, diagonals are equal, then it is square. Diagonals not equal rhombus। अगर diagonals इक्वल आ गए, ये आपके इक्वल आ गए, AC इक्वल BD आ गया, AC इक्वल BD, तो स्क्वायर हो गया ये। और AC नॉट इक्वल टू BD, then it is rhombus। Same in rectangle, L L B breadth rectangle है, और ये पैरेललोग्राम है आपका। पैरेललोग्राम अपोजिट साइड, अपोजिट साइड्स, ए बी सी डी ले लें, इसको ले लें, ए बी सी डी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी ए बी इक्वल सी डी और बी सी इक्वल ए डी। इट मे बी रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम्स। फाइनल टेस्ट, फाइनल टेस्ट बाय diagonals। If diagonal D1 is equal to D2, rectangle, okay, D1 is not equal to D2, it is parallelogram। ओके, ये समझ में आ गया होगा, नोट करें आप सभी।